Good morning student. Hope so you are fit and fine at your home. Today we going to start our unit 2 and chapter number 7. Our chapter number name is ability to work independently. In this chapter we have discussed about the ability to work independently, means how can we do work independently. So let's continue students. Now today we discuss here how to become self reliant, means हम अपने आप को self reliant कैसे बनाएं. So there are 3 key points. Keys to become self reliant are: first is self awareness, second is self motivation, and third is self regulation. You can see in this picture there is a first is self awareness, means you are aware about your strength, about your weakness, about your positive attitude, about your personal emotions, everything you know about you. Second is self motivation, always you motivate your regulation, self regulation time, that is a self regulation. Now we discuss one by one every point of this slide. Now first is self awareness. Self awareness means being aware of the personality, include your strength, weakness, thought, belief, emotion and motivation, means you know yourself about these things. Now next is our टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. जो सेल्फ अवेयरनेस है वो 2 टाइप्स की होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है कि हमें अपने बाहर का इन्वायरमेंट में जो भी चल रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस? सो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस डिपेंड ऑन द योर इमोशन, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, all things. Okay, now next is type of motivation. So next is type of motivation. There are 2 types of, firstly motivation, self motivation means motivate yourself time to time, that is the self motivation. There are 2 types of motivation, intrinsic motivation and extrinsic motivations. Okay, so you can see here an intrinsic motivation or extrinsic motivation in this picture. Okay, now we discuss here self motivation. There are the some points you can motivate yourself. Firstly, 4 elements keep the person motivated are: first is personal drive to achieve, the desire to improve or meet specific standard. फर्स्टली अपने आप को क्या करना है, ड्राइव करना है अचीवमेंट के लिए, अपने आप को एक्शन की फॉर्म में लाना है. ओके, और जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है वहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिक फॉर्म में उनको इम्प्रूव करना है. कमिटमेंट टू पर्सनल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कमिटमेंट इफ़ यू मेक द डिसिप्लिन, इफ़ यू मेक द डू लिस्ट, देन यू कमिटमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड यू डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू द rule regulation. Initiative for the readiness to act on opportunity means always you give the initiative for any activity या any opportunity. You do your best in any activity. Next is optimism, which is the ability to continue and pressure goal in the face of failure. Always you ऑप्टिमिज्म मीन्स आपको हमेशा आशावादी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको होप ही छोड़ दो किसी चीज़ के लिए, आप उस काम को करना ही छोड़ दो. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन. इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन क्या होता है? ये बिफोर दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस ना 2 टाइप ऑफ मोटिवेशन, इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन एंड एक्सट्रिनिक मोटिवेशन. सो नाउ वी डिस्कस हेयर इंस्ट्रिक्ट motivation: participating in the sport because you find the activity enjoyable. Firstly, participating in the sport में आपको पार्टिसिपेट लेना है और उसको enjoy फील करना है. cleaning your room because you are ready to take
tidying up means you do your activity at your home, you clean your rooms, you clean everything. Exercising because you want to relieve stress. Every day you do exercise and you can relieve your stress. That is the intrinsic motivations. Okay, now next is extrinsic motivation. Participating in a sport to win a reward means उसमें क्या था कि आप पार्टिसिपेट करना है, पर इसमें पार्टिसिपेट किस लिए करना है, आपको रिवॉर्ड के लिए. क्लीनिंग योर रूम टू प्रिपेयर फॉर द विक्टर बिकमिंग आवर देयर. क्लीनिंग योर रूम टू प्रिपेयर फॉर विजिटर मीन्स अपने रूम को तब तक क्लीन कर देना है आपने. उसमें क्या था कि आपने अपने अंदर से इच्छा जगानी है कि आपने क्लीन करना है रूम को, और ये कब तक क्लीन कर देना है आपने, जब तक विजिटर मतलब कोई भी चेकिंग के लिए आता है तो उससे पहले आपका रूम क्या होना चाहिए, क्लीन. एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट मीन्स वाई यू डू एक्सरसाइज. वहाँ पे क्या था, यू डू एक्सरसाइज, और यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज टू डू वेट मीन्स अपना वेट को लूज करने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज स्किल इन्वॉल्व इन द सेल्फ मोटिवेशन. व्हाट स्किल इन्वॉल्व इन द सेल्फ मोटिवेशन? फर्स्टली सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक गोल मीन्स कोई भी गोल करो पर रियलिस्टिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए. टेकिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क मीन्स आपको रिस्क लेना चाहिए पर अप्रोप्रिएट लेवल तक. ऐसा नहीं कि आप मतलब अंधे होके ही कोई रिस्क ले ले और उसमें फिर जो भी आप पैसा लगाएं या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो आपका लॉस हो जाए. बीइंग कमिटेड टू पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल मीन्स कमिटमेंट होना चाहिए अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग. ओके. अनस्टीलिंग अपॉर्चुनिटी मीन्स जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए. नेक्स्ट इज कंटिन्यू टू पर्पस परस्यू गोल डिस्पाइट सेटबैक मीन्स अपने गोल को तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक आप प्रॉपर उसको अचीव नहीं कर लेते हैं. ये इसमें आपको शो किया हुआ है पिक्चर में. फर्स्ट लाइन जो थी, सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक गोल. फर्स्टली सेट योर गोल. सेकेंड, यू टेक द अप्रोप्रिएट रिस्क. जो रिस्क आप ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप रिस्क लें. नेक्स्ट इज गिव द फीडबैक. फीडबैक जब देगी, जब आपने पढ़ा था ना कम्युनिकेशन वाले लेसन में फीडबैक क्या होता है. फीडबैक क्या होता है, जब आप प्रॉपर रिजल्ट किसको शो करते हो, विद द एक्नॉलेजमेंट के साथ. नेक्स्ट इज कंटिन्यू द परस्यू गोल डिस्पाइट सेटबैक मीन्स जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि देखो ये अपॉर्चुनिटी के बोझ में ही नीचे रह गया है, जबकि अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए. अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप मूव ऑन करोगे. नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन. इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन टू द थिंग हैपनिंग अराउंड मीन्स सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि अपने आप को मैनेज करना, रिएक्शन को, अपनी हैपनिंग जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है, दैट इज़ द सेल्फ रेगुलेशन. मीन्स जैसे इस आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो पर्सन है ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को रेगुलेट कर रहा है. जैसे जैसे ये करेगा, ये लिटिल कर रहा है तो ये थोड़ा सा उदास रहेगा, ये नेक्स्ट वाला ज़्यादा ही परेशान हो जाएगा, और लास्ट में जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है वो तो बिल्कुल ही रेड जोन में चला जाएगा. ओके, दैट इज़ द सेल्फ रेगुलेशन. नाउ सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व बीइंग एबल टू मीन्स जो सेल्फ रेगुलेशन करते हैं तो वो किस किस काम को करने के एबल होते हैं. फर्स्टली कंट्रोल रिएक्शन टू इमोशन लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट. वो अपने इमोशन पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. जो फ्रस्ट्रेशन उनको आई है या एक्साइटमेंट आई है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आता है उनको. नेक्स्ट, क्लाइंबिंग डाउन आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग एंड अपसेटिंग हैपन मीन्स क्लाइंबिंग डाउन मतलब नीचे उतरना, आफ्टर समथिंग एक्साइटिंग होने के बाद भी वो ऐसा नहीं है कि अपने आप को ऊपर ही रखते हैं, अपने आप ही वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं. नेक्स्ट इज फोकस ऑन अ टास्क. Always you set your goal and focus always. That type of person focus their goal always. Refocus attention on a new task. मतलब रीफोकस का मतलब क्या है, उसी वर्क पे एक बार वो दोबारा से इवेल्युएशन जरूर करते हैं अपने वर्क पे. गेट अलोंग विद द एवरीवन एल्स मीन्स वो सभी के साथ चलते हैं. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज आवर इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन करते हैं हम, वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में? सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। जो सेल्फ रेगुलेशन है वो क्या है, पीपल को बिहेव करना सिखाता है सोशल के अकॉर्डिंग, जो सोशली एक्सेप्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। ओके, इट हेल्प द पीपल इन मेकिंग फ्रेंड। ये आपकी हेल्प करता है कि आपके लोग क्या बने, फ्रेंड्स बने। इट मेक द पीपल मोर इंडिपेंडेंट। ये क्या बनाता है, पीपल्स को मोर इंडिपेंडेंट बनाता है, बिकॉज यू डू योर वर्क विद द टाइम, देन डजेंट मैटर कि यू वांट टू नीड एनी हेल्प। इट एनेबल दैम टू मेक द राइट डिसीजन अबाउट देयर बिहेवियर। मीन्स इस टाइप के पर्सन क्या कर सकते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और राइट ले सकते हैं। इट हेल्प इन द मैनेजिंग स्ट्रेस। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। नाउ इट्स अ कंप्लीट। होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।